हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी 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 स्पेशल। आई मीन वेरी वेरी टारगेटिव टू दैट ऑडियंस who are emotionally drained, mentally not at peace with themselves because of many internal things that keep going on a day-to-day basis, जिनके बारे में कोई बात ही नहीं करता, जिनके बारे में क्या बात करनी चाहिए वो भी नहीं पता होता. So today it's going to be very, tackling a problem by seeing the emotional reason why we have to tackle this problem. क्यों ज़रूरी है कि हम इस प्रॉब्लम को एक्नॉलेज करें? Why? क्योंकि this is somewhere getting to be a norm. It's coming and affecting our mental health. It is affecting the way our peace is supposed to be. हमारा पीस ऑफ माइंड चले जा रहा है इस सब चीज़ों की वजह से. So it is very important to highlight these issues, and these are something which nobody talks about. No talk show has talked about it. No person likes to highlight such things which are supposed to be managed emotionally, and we expect that person should know कि हाँ ये तुम्हारी मसला है, डील करो. ना किसी फ्रेंड या ना किसी क्या कहते हैं बड़े लोगों को या किसी को भी ये प्रॉब्लम समझ में नहीं आती, बिकॉज ऑल वी थिंक इज दिस इज़ नॉट इन आवर हैंड्स, या फिर अरे नहीं यार सामने वाला समझेगा ही नहीं. नो. सो वी आर गोइंग टू एड्रेस दिस एंटायर into 5 ways that we can deal with parental arguments or disagreements. Now I am making this video because I have first of all gone through all these things personally also, and I am a child right now. मतलब मैं अभी तक माँ बाप नहीं बनी हूँ to actually experience those things, but I know कि yes, parents as a child मैं उनको कैसे देखती हूँ और मैं कैसे उनको रिटेलिएट करूँ या फिर मैं कैसे बिहेव करूँ कि वो सिचुएशंस को मैं हैंडल कर सक रही हूँ. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यू आर गोइंग टू फाइंड द वाई आर सच आर्ग्यूमेंट्स क्रिएटेड. पहली बात तो एज गैप है, ठीक है. देयर इज अ लॉट ऑफ एज गैप बिटवीन us and our parents, okay, because of which the level of understanding that we have of emotions or the level of prioritization we give to emotional health, to mental health right now, as being in our 20s or in our teen years, is much more than what they think is much more than what they used to give in their times. And how they see is completely different. उनका देखने का नज़रिया दुनिया को completely different है than how we see it in our 30s and in our 20s and 30s. So वो एज गैप तो रहेगा ही रहेगा. ईगो इश्यूज़ आ जाते हैं, ईगो क्लैशेस भी बोल सकते हैं. लड़ाई हो गई माँ बाप से, ठीक है, कोई भी छोटी चीज़ के बारे में. अब ये ईगो इशू आएगा कि भाई मैं जाके मम्मी को क्यों मनाऊँ, मैं जाके पापा से क्यों बात करूँ, क्योंकि पापा की गलती थी तो पापा को आना चाहिए, मम्मी की गलती थी तो मम्मी को आना चाहिए. मैं क्यों जाके उनको मनाऊँ, मैं क्यों जाके बात इनिशिएट करूँ. दैट इज़ द ईगो टाइम. मतलब वो ईगो कहीं ना कहीं यहाँ पे हावी हो जाता है. उस टाइम पे आप नहीं रहते हो, उस टाइम पे मैं आ जाता है. ओके. नेक्स्ट इज सेंस ऑफ अथॉरिटी. वी स्टार्ट सीइंग आवरसेल्व्स कि आई नो थिंग्स, दे डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट थिंग, बट स्टिल दे वॉन्ट to make sure that they are elder to me, तो इसलिए they are trying to put their upper hand on me. मतलब वो मुझे कंट्रोल करना चाहते हैं. they want to have authority over me. ये थॉट आ जाते हैं हमारे दिमाग में, and then we want to just go away कि हम I don't want to be controlled, I don't want to be told what to be done. Okay, so that comes in. Next is disrespect. See, all children somewhere deep down respect their parents. Okay, चाहे वो कितना फ्री माइंडेड क्यों ना हो, क्या वो कितना आई डोंट गिव अ फक काइंड ऑफ बच्चा क्यों ना हो, बट दे डीप डाउन रिस्पेक्ट देयर पेरेंट्स, कोई एक ना एक रीज़न से. बट द मेन थिंग इज दे डोंट रिस्पेक्ट द काइंड ऑफ पर्सन दे आर. दे रिस्पेक्ट देयर पेरेंट्स बिकॉज दे आर देयर पेरेंट्स और दे आर एल्डर टू देम, okay, or because of one or two specific reason.
But respect is not just something that you do because of their post or their present state. Respect is that comes from within for a person, because of their thoughts, because of the way they behave, because of who they are. नहीं, क्योंकि वो ऐसे हैं, उनके थॉट्स ऐसे हैं, उनका बिहेवियर ऐसा है, इसलिए मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ. एंड दैट इज समथिंग दैट कम्स फ्रॉम इनसाइड, दैट वी कैनॉट build or cannot like force someone to respect us. So that thing is not there. ठीक है. And lack of self reflect, ये पॉइंट इतना इम्पॉर्टेंट है ना, मैं आपको बता नहीं सकती. अ पर्सन ऑलवेज थिंक्स कि उसकी लाइफ में जो भी हो रहा है, स्पेशली इन आवर 20s and 30s, वी ऑलवेज थिंक्स कोई भी मसला हो गया, इट इज़ बिकॉज ऑफ द सम एक्स और वाई रीज़न, या फिर बिकॉज ऑफ सम एक्स और वाई पर्सन. यार मम्मी आपने ऐसे क्यों कर दिया, आपकी वजह से देखो मेरा ये हो गया, मेरा इतना लॉस हो गया. अरे मम्मी आपको तो वीडियो निकालनी आती नहीं, फिर भी आप मेरे फ़ोन से वीडियो निकालते रहते हो और यूट्यूब और कहीं ना कहीं पोस्ट करते रहते हो, आपको जब आता ही नहीं तो क्यों करते हो. अरे पापा ये आपको अगर पढ़ने आते ही नहीं तो फिर आपने इसमें क्यों डाला. मतलब हर चीज़ में एक सामने वाले को ही हम टारगेट करते, कभी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करते. सेल्फ एनालाइज कि व्हाट इज़ द थिंग विच इज़ सेल्फ रिफ्लेक्ट नहीं करते हम कि व्हाट इज़ द थिंग दैट आई कैन डू टू मेक देयर लाइफ्स बेटर. व्हाट इज़ द थिंग दैट आई कैन डू टू अवॉइड सच सिचुएशंस इन फ्यूचर. इफ़ फॉर एग्जाम्पल कोई मसला हो गया, बिजली का मसला हो गया, बिजली का बिल क्या बोलते हैं, बिजली का बिल पे नहीं किया एंड बिकॉज ऑफ दैट बिजली नहीं आ रही एंड दैट इज़ एन इशू दैट हैज़ हैपेंड. नाउ यू विल स्टार्ट ब्लेमिंग योर पेरेंट्स कि मम्मी आपने डेट क्यों नहीं याद दिलाई मुझे कि मुझे बिल पे करना था. यू विल नॉट सेल्फ रिफ्लेक्ट ऑन योर सेल्फ कि दिस डिडंट हैपन बिकॉज आई डिडंट डू इट. एक्सेप्ट नहीं करते हम लोग, बस रिफ्लेक्ट नहीं करते हम लोग, बस सामने वाले पे डाल देते हैं. तो प्रॉब्लम क्या हो रही है सबकी वजह से. फर्स्ट थिंग इज रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हम लोग, नहीं लेते रिस्पॉन्सिबिलिटी. लेट्स बी ऑनेस्ट विद आवरसेल्व्स. वी ऑलवेज प्ले द ब्लेम गेम कि मम्मी उसके वजह से, फलाना उसके वजह से, पापा आपके वजह से, पापा मम्मी आपके वजह से, या फिर उसके वजह से ये हुआ है, ये हुआ है, एंड वी कीप प्लेइंग द ब्लेम गेम. बिलीव मी, you have to be honest with yourself on this. Everyone does this. और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम क्या हो रही है अभी, हम सुनते कम हैं. पहली बात तो हम सुनते कम हैं, जो एक्चुअली नॉर्मली सुनना भी चाहिए, लेकिन हम वो ही कम करते हैं. और समझते तो और भी ज़्यादा कम है. ठीक है, हम सुनते नहीं हैं, वी डोंट लिसन. अगर हम सुनेंगे ही नहीं तो हम कॉम्प्रीहेंड कैसे कर पाएंगे, हम समझेंगे कैसे कि असल प्रॉब्लम क्या हो रही है, मसला क्या हो रहा है. वी जस्ट नो कह रहे यार वैसे ही बोलते रहेंगे, चलो छोड़ो उनको, उनका तो काम ही है बोलना, क्या सुनना. मैं बोल रही हूँ आप सिचुएशन को, शायद आप सुनने की स्टेट में भी ना हो, मगर आप समझने की कोशिश कीजिए कि आपके पेरेंट्स ऐसे क्यों बोल रहे हैं. खुद ही से सवाल करें कि जो एंटायर सिचुएशन हुई है उसमें मेरे मॉम डैड क्यों ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं, क्यों ऐसा क्यों, वाई, अंडरस्टैंड द वाई. क्या वो आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं, क्या वो आपको नसीहत देना चाहते हैं, क्या उनका बोलने का तरीका ही ऐसा है, या फिर वो सिर्फ इतने स्ट्रेस्ड है जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस आप पे निकाल दे रहे हैं, वो गुस्सा, वो स्ट्रेस आप पे निकल जा रहा है. अंडरस्टैंड द वाई, क्यों वो उस स्टेट में बात कर रहे थे. ठीक है, समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है. जब तक आप अपने पेरेंट्स को कॉम्प्रीहेंड या समझोगे नहीं ना, तो उनके साथ डील करना नहीं समझोगे. जब तक आप कोई डील को कैसे डील करते नहीं समझोगे, तब तक आप उसकी सेल नहीं कर पाओगे. उसी तरह अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रीहेंडिंग देम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. और क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, तो इस ये प्रॉब्लम हो चुकी है अभी हमारी. अब हम इसका कॉज देखते हैं. रूट कॉज क्या होता है. पहली बात तो होती है हम अपने पेरेंट्स को समझते नहीं हैं, हम अपने इतराफ़ में जो भी लोग हैं किसी को समझते नहीं हैं. और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट,
उनको इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि हम कभी खुद को नहीं समझ पाते. So the thing is not understanding others' perspective and not understanding yourself. हम सामने वाले को नहीं समझते, उल्टा हम खुद को भी नहीं समझते कि मैं ऐसा हूँ जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही है. So that is more important. If I start understanding myself and my patterns and then working on my patterns, then understanding others will not be a problem. So start understanding yourself and working on yourself. Working on yourself means working on your patterns, on your habits, on your flaws, which you know very well. After which, automatically understanding and dealing with others, their perspective will be very easy. ठीक है? Now next thing we'll see is consequences. Now अभी ये कॉज हो रहा है, ये प्रॉब्लम है, ये कॉज है, उसकी वजह से हम लोग क्या सफ़र कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म इसमें क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगी अगर हम ऐसी ये सब चीज़ें चलती गई, उनका कोई सोल्यूशन नहीं निकाले गए. पहली बात तो फाइट्स होंगे, 2-3 फाइट्स होते रहेंगी 2-3 दिन में, ऐसे एक बार या फिर हफ्ते में 2-3 बार. देन व्हाट हैपन्स इज द फाइट्स रिमेन अनरिजॉल्व्ड. लड़ाई हुई या फिर कुछ बहस हो गई, सम आर्ग्यूमेंट हैपेंड एंड दैट आर्ग्यूमेंट डिडंट हैव एनी एंड. Neither did you say sorry, neither did she say, neither your parents did anything about it, and it was just there stagnant. You are having the same negative perspective about that issue about your parents कि यहाँ फलाना ने ऐसे किया था उस दिन. They are also having the same negative perspective about it कि यार मेरी बच्ची ने ऐसे किया था, अरे वो ऐसी ही है, उसको कितनी बार भी बोलूँ मैं वो ऐसी ही कर रही है. So that negative impression about the child or about the parent gets sets in your mind and that remains unresolved because there was no reconciliation. सुलह नहीं हुआ था उस चीज़ में. There was nobody was taking responsibility at that time, because of which it remained unresolved. Because of which what happens is there is a negative perspective build up about your own parents, about your own child, about your own people. There is a negative perspective build up. And slowly that negative perspective which gets built becomes so strong that it even overpowers the love and respect that children have for their parents. That even overcomes that. That negative perspective leads to more arguments, blackmailing. अरे मैं घर छोड़ के चले जाऊँगा यार, मुझे नहीं चाहिए सब सियापा, हर रोज़ का चिल्लाना, रोज़ का सुनना, नहीं मुझसे नहीं होगा. Finally leading to the worst stage, that is abandonment. They leave the home and go. They're like, I'll live my own life. यार क्या रोज़ का है, मुझे नहीं रहना यहाँ पे. They start blackmailing to another level. So what do you think are the solutions of this thing? First thing, ये अपने दिमाग से निकाल दो कि being right is not always important. This thing is more important in life. That relations are always important than just being right or correct. She's your mom. She's your dad. He's your dad. उनका रहना. Assalamu alaikum friends. So now we'll resume to the solutions that we can have for all these मसलेस. पहली बात तो I am right होना ज़रूरी नहीं होता हर चीज़ में. Sometimes the relation is more important than just being correct. Okay? So understand कि वो आपके माँ है, वो आपके बाप है, and they want the best for you. They don't want to belittle you in any life, any sphere of life. So understand that, and उनका रिश्ता ज़्यादा important है than just you being right. And it's a very temporary state. आज लड़ाई होगी, 3-4 साल के बाद वो मैटर ही नहीं करेगा. अपने आप से पूछो, does that fight or does that being right matter so much from like 10 years from now, 5 years from now? क्या वो उतना मैटर करेगा? No. So why? वो ऐसी माँ है जिन्होंने जब खाने के लिए नहीं था तो वो आपको खिला के खुद भूखी सो जाती थी. ठीक है, तो ऐसे इंसान आपके बारे में क्यों गलत सोचेगा, क्यों बुरा सोचेगा, क्यों आपको बिलिटल करना सोचेगा? सो
Stop thinking they are your enemies. Start seeing them as a relation that wants you to grow, as that gardener who wants to water you, ताकि आप एक दिन bloom करें. Okay? And accept करें कि उनका तरीका ही ऐसा है. Accept that they are like that. They won't change. Accept their nature. जैसे हैं वैसे ही रहेंगे. The only thing that you can change is your response, your reaction to whatever happens. आप खुद को चेंज कर सकते हो, अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज कर सकते हो, अपना वे ऑफ रिएक्टिंग टू थिंग्स चेंज कर सकते हो. आप उस एंटायरली नेगेटिव स्टेट को पॉजिटिव बना सकते हो by just being gentle, by just being positive, by just saying affirmations like अरे मम्मी कोई बात नहीं, हो गई गलती, छोड़े, ठीक है. तो यू कैन डू दैट, राइट. सो ये चीज़ ट्राई करें. दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड वेरी नाइस वेपन. कि कुछ भी हो जाए, गलती शायद आपकी हो या ना हो, इवन इफ यू आर रॉन्ग, जस्ट से आई एम सॉरी इफ यू फेल्ट बैड. You are not saying sorry for the thing that happened. Remember that. You are saying sorry for the way your mom felt, for the way your dad felt after that. Understand this. This is very, very, very delicate thing. You have to be sorry for making them feel bad or making them hurt. Indirectly or directly. बहुत बार ऐसे होते हैं, हम उनको hurt नहीं करना चाह रहे थे वो चीज़ करके, but वो चीज़ से आपकी गलती नहीं थी, बट वो हर्ट हो गया. सो जस्ट से आई एम सॉरी इफ़ यू फेल बैड, आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, फॉरगिव मी एंड लेट इट गो. तो जैसे ही आप ये वर्ड्स ना ट्राई करें आपके पास, जब भी कुछ भी क्या कहते हैं क्वारल हो रही है, कोई आर्ग्यूमेंट हो रही है, बस ये 3 सेंटेंसेस, ये 3 फ्रेजेस, ये 4 फ्रेजेस बोल के देखें. आई एम सॉरी इफ़ यू फेल बैड, आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, फॉरगिव मी एंड लेट इट गो. There will be an instant shift of energy. वो ऑटोमेटिकली उस चीज़ के बारे में रैंट करना, उस चीज़ के बारे में बात करना स्टॉप कर देंगे. They will understand that okay, you do care about their feelings. असली मसला क्या होता है कि वो चीज़ नहीं होती, वो टॉपिक नहीं होती, वो ये होता है कि आप ये केयर ही नहीं करते कि वो क्या फील करते हैं. उनकी फीलिंग्स को वहाँ पे कुछ एक्सेप्टेंस ही नहीं मिल रही, कुछ वो ही नहीं दिख रहे कि आप वो कैसे फील कर रहे हैं, आप उसके बारे में सोच ही नहीं रहे. सो जब आप ये कहते हो तो आप देखो, एनी चाइल्ड वुड नॉट वांट टू हर्ट देयर पेरेंट्स. या आप चाहोगे कि आप अपने पेरेंट्स को हर्ट करो? नहीं. तो आप इसलिए सॉरी कह रहे हो ताकि वो अगर हर्ट हो इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली हर्ट हो चुके हैं आपकी वजह से, तो जस्ट से सॉरी, आई एम सॉरी इफ़ यू फेल बैड, आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, फॉरगिव मी एंड लेट इट गो. देखिए, सॉरी कहने से ना कोई इंसान छोटा बड़ा नहीं होता. इनफैक्ट सॉरी कहने से रिश्ते और मजबूत होते हैं. सो इट्स अ वेरी पावरफुल वर्ड एंड दिस इज़ अ वेरी पावरफुल टेक्निक. व्हेनेवर यू से दीज थिंग्स ना, सी दे विल बी इंस्टेंट. आप करके देखें, देयर इज अ इंस्टेंट शिफ्ट ऑफ एनर्जी एंड ऑटोमेटिकली वो एंटायर सिचुएशन चेंज हो जाती है. या फिर आप थर्ड वे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कोई जोक सुना दे सकते हैं बीच में, या फिर जस्ट टेक इट लाइक कोई फ़नी इंसिडेंट बोल दिया, या फिर बोला अरे मम्मी जाने दें, लाइट लें, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा, ख़त्म. उस मसले को वहाँ पे स्टॉप कर दें, बट नेक्स्ट टाइम मेक श्योर करें कि आप रिपीट भी ना करें. ओके, सो जस्ट से कि कोई जोक सुना दे, कोई फ़नी इंसिडेंट सुना दे, या फिर रैंडमली कभी लाइक कोई गिफ्ट दे दें. कैसे कहते हैं, जिस रैंडमली फ्लावर्स ला लिया आपने, कोई रोज़ दे दें. आपकी मम्मी को कोई चीज़ बहुत पसंद है, ठीक है, कभी कुछ बना दे उनके लिए, कभी कुछ रिंग ला लेकर शर्ट दे दे, कभी परफ्यूम दे दे, कभी कुछ अच्छा से शाम के टाइम कुछ बना दें अपने हाथों से. मतलब उनको, आई नो ये सब के टाइम पे आपको कुछ अच्छा करने का मन नहीं करेगा, बट जस्ट इमेजिन अगर आप मम्मी गुस्सा है और आप भी गुस्सा हो और आप एक फ्लावर ला के दे देते हो उनको, डोंट यू थिंक देयर विल बी इंस्टेंट शिफ्ट ऑफ इमोशंस बिटवीन यू बोथ? देयर विल बी एन इंस्टेंट चेंज. ठीक है, तो आप ये करना स्टार्ट करें. जब भी नेगेटिव एनर्जी हो रही है आपके अराउंड, आप उस एनर्जी में पॉजिटिवनेस लाएं. कुछ ऐसा प्यारी चीज़ें कोई रखें अपने अतराफ़ में, ठीक है. या फिर अगर ये भी नहीं हो सकता तो
फिफ्थ इज चेंज योर फोकस, चेंज योर एनवायरनमेंट. ठीक है, एनवायरनमेंट शिफ्ट कर लें, बाहर चले जाएँ, दूसरी जगह चले जाएँ, पर ये टेम्प्रेरी होते हैं. दिस इज़ नॉट द सिग्निफिकेंट या फिर परमानेंट सोल्यूशंस नहीं है. उस टाइम के लिए ठीक होगा, बट बाद में फिर वो चीज़ याद आएगी. बट उस वक्त के लिए, दैट पर्टिकुलर मोमेंट के लिए आप एनवायरनमेंट शिफ्ट कर सकते हैं, या फिर अपना फोकस चेंज कर सकते हैं कि हाँ कोई और टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं मम्मी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी मम्मी. ठीक है, ये होता है. सो these were the 5 ways in which you can actually tackle that mental state of mind which comes when your parents are arguing with you about something, or imposing when you start feeling that they are imposing you to do something. So please make sure कि आप, कुछ चीज़ें होती है लाइफ में जिनके ना आंसर्स ना बहुत देर से पता चलती है, बहुत देर हो जाती है जब तक हमको पता चलता है कि यार उस दिन वो नहीं करना था. So, it's better to live a life with solutions, with happiness, with peace, than with regret. So, it's never too late. And if you like my videos, please like my channel and subscribe to my channel for more such things which nobody talk about.